Good morning, children. We are going to continue with the chapter number 3, personal and possessive pronoun in grammar textbook. Now first again we will read few summary of it. Page number 28. Let's learn. There is another type of pronoun which is called possessive pronoun. Now there is another type of pronoun which is called possessive pronoun. Now what is possessive pronoun? Possessive pronouns are pronouns that stand for people or thing who own something. Own something मतलब उसका खुद का हो, राइट, खुद की मालिकी हो. स्टैंड फॉर उसकी जगह लेता है possessive pronouns. Example, this computer is mine, that computer is yours, this computer is mine. उसने क्या कहा, ये कंप्यूटर मेरा है और वो जो कंप्यूटर है वो आपका है. द टेबल बिलो शोज द पॉजेसिव प्रोनाउंस इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. अभी पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में भी है, वो हम देखेंगे. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, माइन. प्लूरल आएगा अवर्स. सेकेंड पर्सन में सिंगुलर योर्स है, प्लूरल भी उसका योर्स ही रहेगा. थर्ड पर्सन में सिंगुलर हीज, हर्स, इट्स है और प्लूरल क्या हो जाएगा, theirs. क्या हो जाएगा, theirs. टिप बॉक्स. द पॉजेसिव प्रोनाउन नेवर कम विथ एन एपोस्ट्रोफी एस. ऑलवेज रिमेंबर, पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो कभी भी एपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं आता. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज इक्वल टू इट्स. शॉर्ट फॉर्म इट इज़ का क्या है, इट्स है. डोंट कन्फ्यूज इट्स विद द पॉजेसिव इट्स. Don't confuse its with the possessive its. Example, it is my book, it's my book. It is my book. तो क्या होगा, example, it's my book. But the bird has a nest, its nest is small. No use of apostrophe s. यहाँ पे apostrophe s का यूज़ हुआ नहीं है. यहाँ पे क्या है, the bird has a nest. bird का nest है यहाँ पे और इट्स नेस्ट इज स्मॉल. इट्स माई बुक. यहाँ पे माई बुक है, इसके लिए इट्स के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है शॉर्ट फॉर्म. लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, द बर्ड हैज़ अ नेस्ट. हमें ये कहा गया है कि बर्ड हैज़ अ नेस्ट, उसके पास नेस्ट है बर्ड का. इट्स नेस्ट इज स्मॉल, उसका नेस्ट कैसा है, स्मॉल है. नाउ विल डू द एक्सरसाइज. Fill in the blanks by choosing the correct possessive pronoun from this box. Now what we have to do? We have to select correct possessive pronoun from this box. Y-O-U-R-S, yours. M-I-N-E, mine. H-I-S, his. H-E-R-S, hers. O-U-R-S, ours. I-T-S, its. T-H-E-I-R-S, theirs. Now we'll read the sentences. A. Amar, I am confused. Is it our turn or theirs? अभी यहाँ पे क्या कहा गया, अमर जो है वो कंफ्यूज है. उसने ऐसा कहा कि our turn में अपना टर्न है या फिर theirs उन लोगों का है. तो बीना, it's नॉट दैट टर्न, इट्स आर्स. क्या हुआ, बीना ने क्या कहा, नहीं उनका नहीं है, इट्स आर्स टर्न. सो ओवर हियर व्हाट इट इज़ बीन सेड कि दे आर थिंकिंग अबाउट आर टर्न और देयर्स टर्न. सो हियर बीना इज सेइंग कि इट्स नॉट दैट टर्न, इट्स आर्स. ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मीन्स अबाउट देमसेल्व्स ओनली. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स. B1, आई कैन नॉट सी मॉम but I know the voice is hers. I can recognize mom's voice from a mile. Here the child is what he's saying, he's far away from mom, right? So the child is here, it's saying I cannot see mom. He cannot see the mom, but he can hear the voice. So over here what it is, hers. Mom is there, so what we will use, pronoun hers, because it is a female. For female we'll use hers. Okay, I know the voice is hers.
सी आई डू नॉट लाइक माई स्लीपर्स, आई लाइक हीज। भी यहाँ पे क्या है, स्लीपर इज़ नॉन लिविंग थिंग है, और यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है, आई डू नॉट लाइक माई स्लीपर्स, ही डज नॉट लाइक हिज ओन स्लीपर बट आई लाइक हीज। डोंट टेल एनी वन द पेंटिंग इज़ योर्स, आई मेड ए complete match of it, I made a complete match of it. Over is saying it, don't tell anyone, don't speak about the painting is yours. Anyone to means don't talk about it, that painting belongs to you. Akriti, is that your notebook? Bala, no, that's not mine. Now why Akriti is asking who, Bala, कि ये बुक आपकी है, तो बाला ऑफ कोर्स ही विल से इट्स नॉट माइन, वो अपने नहीं है, नॉट माइन. माई पैरट इज़ वेरी क्लेवर, इट knows which cage is its. Now for the birds, as I told you, non-living thing, animals, birds, what we will use, it, its. So my parrot is very clever, I know which cage is its. Now we'll read all the sentences again. Amar, I am confused, is it your turn or theirs? Bina, it's not their turn, it's ours. I cannot see mom, but I know the voice is hers. I can recognize mom's voice from a mile. आप लोग भी पहचानते हैं उनके पेरेंट्स की आवाज़, राइट? सो योर द चाइल्ड इज सेइंग आई कैन recognize my mother's voice from far off. I do not like my slippers, I like his. Don't tell anyone the painting is yours, I made a complete match of it. Akriti, is that your notebook? Pala, no, that's not mine. My parrot is very clever, I know which cage is its. और क्या कहते हैं, my parrot is very clever, उसको पता है कौन से केज में वो है. Now we'll go to the next exercise. Page number 29. Now here what it is said. This letter is from a girl in South Korea. She wants to be your friend. She has a problem with English pronouns, so she uses nouns in their place many times. Underline the problems and rewrite the letter using correct pronouns. Now here what happened, over here it is a girl who lives in South Korea and she wants to be the friend of yours. She has a problem with English pronouns. उसको क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश प्रोनाउन से उसे प्रॉब्लम है. So she uses nouns in their place many times. वो क्या यूज़ करती है, nouns यूज़ करती है many times उसकी जगह पे. अभी क्या करना है, अंडरलाइन द प्रॉब्लम्स एंड री राइट द लेटर्स यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंस. क्या करना है, अंडरलाइन करना है हमें उसके प्रॉब्लम्स, और जहाँ जहाँ उसका प्रॉब्लम है वहाँ पे हमें प्रोनाउंस लिखने हैं. ओके चिल्ड्रन, विल स्टार्ट. यहाँ पे क्या लिखा है, डियर डैश. यू कैन राइट योर नेम हियर. यहाँ पे आप अपना अपना नाम लिखोगे. डियर रितिका. माई नेम इज़ यून. यून मीन्स काइंडनेस एंड ऑल्सो सिल्वर. यून का मतलब क्या है, काइंडनेस भी होता है उसका मतलब, और सिल्वर भी इन कोरियन लैंग्वेज में. आपने पढ़ा ना स्टार्टिंग में कि साउथ कोरिया से है. यून एम काइंड लाइक माई नेम. अभी यहाँ पे उसने बार बार इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि माई नेम इज़ योन. योन मीन्स काइंडनेस एंड ऑल्सो सिल्वर इन कोरियन. फिर से उसने योन यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई. हम क्या लिखेंगे, आई उसकी जगह पे. आई एम काइंड लाइक माई नेम. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माई फैमिली. उसने क्या कहा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माई फैमिली. यून, योंग एंड माई ब्रदर, डैड, मॉम एंड आरा आवर डॉग. द हाउस इज़ आवर. योंग एंड यून आर ट्विंस. भी यहाँ पे उसने अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस किया. उसने फिर से कहा, अपना नाम लिया, योन एंड योंग. यून योंग माई ब्रदर, उसका भाई भी है, उसके मम्मा पापा भी है, और आरा जो है वो एक डॉग है. द हाउस इज़ आर्स. योंग एंड यून आर ट्विंस. वो दोनों क्या है, ट्विंस है. तो हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या लिखेंगे, आई. क्या लिखेंगे, क्योंकि वो अपने बारे में एक्सप्लेन कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे.
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हाउस इज़ आर्स, तो हम एस लिखेंगे यहाँ पे, OURS, आर्स हो गया। सो योंग एंड यून आर ट्विंस, वो दोनों ट्विंस है। नाउ विल रीड द अनदर सेंटेंस। योन एम कोरियन, तो फिर से योन आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। प्रोनाउन में हम क्या लिखेंगे, आई, विल राइट आई। डैड इज़ ऑल्सो ए कोरियन, डैड इज़ ए हॉकी प्लेयर। नाउ यू कैन सी डैड इज़ ऑल्सो कोरियन, शी इज़ स्पेसिफाइड, डैड इज़ ए हॉकी प्लेयर। Now dad is a male person, you can see over here, it is a male person. So what I've written, he, what I've written here, he. And what he is a hockey player. Dad teaches Yeon and Young how to play hockey. Who teaches them to play hockey? Dad. And to whom he teaches? He teaches यून एंड योंग हाउ टू प्ले हॉकी। वो किसको सिखा रहे, उनके बच्चों को ही सिखा रहे कैसा हॉकी खेलना। अभी यहाँ पे 2 जन है, यून है और योंग है, तो अस आएगा, क्या आएगा, डैड टीचेज अस हाउ टू प्ले हॉकी, अस, US, अस हाउ टू प्ले हॉकी। नाउ मॉम इज़ नॉट कोरियन, जो उसकी मम्मा है वो कोरियन नहीं है। Mom is from Japan. Now again mom here and mom is repeated 2 times. So what she will write? She. Here you can see she is written. Now why she is written? Because she is a female, feminine है, इसके लिए हम she लिखेंगे। She is from Japan. कहाँ से है? जापान से है। Japan is a beautiful country like Korea. जापान जो है beautiful country है like Korea. Yoon, Young, mom and dad often go there. तो यहाँ पे उसने क्या यूज़ किया, खुद के बारे में बताया, उसके भाई के बारे में बताया, उसके मम्मी और पापा क्या कहती है कि वो लोग हमेशा जाते रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वी, क्योंकि इसने सबका नाम सेपरेटली दिया है, लेकिन हम सबको एक में ही मर्ज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, वी। व्हाट वी विल राइट, वी ओवर हियर। सो वी ऑफन गो देयर, विल से वी ऑफन गो देयर। मॉम कुक्स वंडरफुल रेमन डिश फॉर यून। मॉम जो है वो एक अच्छी सी डिश बनाती, डिश का नाम क्या है, रेमन। रेमन जो है वो एक जापानीज डिश है, उसको नूडल्स कहते हैं। क्या है वो, रेमन जो है वो नूडल्स का नाम है। तो किसके लिए बनाती है, फॉर योन। योन मीन्स उसके लिए, तो हम मी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोनाउन मी। तो मॉम कुक्स वंडरफुल रेमन डिश फॉर मी, फॉर योन नहीं बोलेगी उसकी मम्मा क्या बोलेगी कि वो योन क्या कहता है, उसकी मम्मा किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए, तो वो मी है। तो मॉम कुक्स वंडरफुल रेमन डिश फॉर मी। रेमन इज़ नूडल्स इन जापान, और रेमन जो है वो एक नूडल का नाम है जापानीज में, जापानीज है। रेमन इज़ नूडल्स इन जापानीज, एक नूडल का नाम है वो जापानीज, जैसे हम इंडिया में खाते हैं मैगी है वगैरह, राइट। तो वहाँ पे नूडल्स का नाम क्या है, रेमन है। आरा इज़ फ़नी एंड लविंग। आरा जो है वो डॉग है, राइट, वो फ़नी और लविंग है। आरा हैज़ सॉफ्ट फर, अभी आरा राइट हैज़ सॉफ्ट फर, तो हमने ही लिखा है। आरा लव्स मॉम डैड एंड यून। आरा जो है वो किस किस को पसंद करती है, मॉम डैड और यून को। तो हम क्या करेंगे, आरा जो है यहाँ पे लिखा है ही, ही, फिर से आरा आया तो ही, और फिर यहाँ पे योन आया, तो योन में हम क्या, मी लिखेंगे। सो आरा लव्स मॉम डैड मी एंड योंग, राइट। वो किसको पसंद करते हैं, उसको पसंद करते हैं, योन को और योंग वेरी मच। तो यहाँ पे योन की जगह पे मी आएगा, व्हाट विल कम, आरा लव्स मॉम डैड मी एंड योंग। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट लाइन। वो इज़ वॉट, अगेन डैश, राइट योर नेम। या आपने जो स्टार्टिंग में लिखा है ना, वही नाम यहाँ पे लिखना है। तो रितिका, प्लीज़ राइट टू योन। योन मतलब मी, उसके बारे में, ये जो लड़की है ना वो बोल रही है उसके बारे में कि एंड फन विल बी फ्रेंड्स। राइट टू योन मी एंड फन विल बी फ्रेंड्स। क्या हो गया, फन्स विल बी फ्रेंड्स हो गया। उसको रितिका को बताना है, उसको फ्रेंडशिप करनी है,
और वो उसके साथ फ्रेंड्स बनना चाहती है, तो यून जो है कि प्लीज़ राइट टू मी वो कहती है, एंड फन विल बी फ्रेंड्स, और यहाँ पे यून विल बी फ्रेंड, वो क्या कहती है, वी विल बी फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स का प्रस्ताव रखती है यून। तो यून जो है वो फ्रेंड्स का प्रस्ताव रखती है, उससे कहती है कि वी विल बी फ्रेंड्स, शी इज सेइंग कि वी विल बी फ्रेंड्स। सो with love Yoon, she has written over here ending the letter saying with love Yoon. So over here what you have to do, in the blank you have to write the name of yours what you written in the starting, and write to Yoon, that is to her, and will be friends, and we will be friends, और friends और कहती है कि हम दोस्त बन जाएंगे. So you can see where the pronouns has been used. We'll read the paragraph again. Dear Ritika, you can write your name here. My name is Yoon. Yoon means kindness and also silver in Korean. I am kind like my name. This is my picture of my family. Young and my brother, dad, mom and Ara, our dog. The house is ours. Young and Yoon are twins. I am Korean. See, M has come. So what will come article over here? What will you write pronoun over here? I. What will you write? I. Dad is also Korean. He is a hockey player. Dad teaches us how to play hockey. Dad teach Yeon and Yoon, because they are two. So it will be us. What you will write? Us. Mom is not Korean. Over here mom is not Korean. She is from Japan. Japan is beautiful country like Korea. Here she described that Japan is a very beautiful country like Korea. Yeon, mom and dad often go there. So what in short for three what we have used? We, W-E-V. We often go there. हमेशा हम वहाँ पे जाते हैं. Mom cooks wonderful ramen dish. Who cooks wonderful dish? Mom. Mom cooks wonderful dish. And what is the name of the dish? Ramen. It is a Japanese dish. So over here mom cooks wonderful ramen dishes for me. Ramen is a noodle in Japanese. It is the name of a noodle in Japan. Ara is funny and loving. Ara is a pet dog, so is funny and loving. He has soft fur. He loves mom, dad and me. Ara is having a very soft feather, right? Soft fur. And what else? Ara loves mom, dad and me. Over here Ara is again repeated. So he will come in the first sentence also. It is said Ara is funny and loving. Then again Ara has soft fur. Again Ara loves mom, dad, me and Young very much. So over here what we will write, only one word is necessary. Here we will write Young very much. Here you will write me. So here what she is talking about, Ara is funny and loving. Ara का हम क्या लिखेंगे? He has soft fur. He loves mom, dad and me. Young के लिए क्या लिखेंगे? Me and Young very much. यून जो है वो उसके बारे में बता रही है, राइट? तो वो लिखेगी उसके बारे में, क्या लिखेगी? यून की जगह पर मी, मी एंड योंग वेरी मच. डैश राइट योर नेम हियर. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आपका नाम लिखना है जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था. प्लीज़ राइट टू योन, मतलब मी, उसको लिखना है. उसको लिखना, प्रीति का जो भी आपने नाम लिखा है वो क्या करेंगे? योन को, मतलब मी, उसको लिखेंगे कि वी विल बी फ्रेंड्स, और उसको फ्रेंड्स बनना है, उसके साथ उसको फ्रेंडशिप करनी है. तो वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ राइट टू योन, मतलब मी, उसको लिखो और राइट टू मी एंड वी विल बी फ्रेंड्स, और लोग फ्रेंड्स, और उसको फ्रेंड्स बनना है रितिका के साथ. सो दे विल बी फ्रेंड्स. तो यून का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, क्योंकि WILL विल है, WILL विल है, तो उसके आगे क्या आएगा? वी आएगा, क्योंकि उससे प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है. सो इट विल बी वी विल कम. विथ लव यून. So dear children, please write this exercise in your grammar textbook with neat and good handwriting.
Thank you.